हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक डिक्टेशन दी है लीगल मैटर की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 40 है और 85 वर्ड्स पर मिनट पर है और ये किसी भी कोर्ट एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। और पहले मैंने डिक्टेशन दी है, उसके बाद मैंने उसकी आउटलाइंस दी हैं। आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आउटलाइंस पहले मत देखिएगा, पहले आप अनसीन उसको डिक्टेशन को लिखिए, उसको ट्रांसक्राइब करिए और जो वर्ड्स आपको नहीं आते हों या जो आपने समझने हों वो बाद में आप उसमें से आउटलाइंस में से देख सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से आउटलाइंस को समझाने की भी कोशिश की है, जहाँ पॉसिबल मैंने समझा है। और जितना आप आउटलाइंस को समझेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुश्किल तब होती हैं जब हम उस पर अपने टाइम या एनर्जी नहीं लगाते, लेकिन जब हम किसी भी अपने समय लगाते हैं किसी भी काम पर, तो नेचुरली उसमें हमें गेन भी होता है। तो प्रॉपरली इसको समझ के इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको फिर आप रीराइट कर सकते हैं इस पैसेज को एंड में। तो अब मैं शुरू करता हूँ डिक्टेशन। प्लीज़ गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 40। इट इज़ ए लीगल पैसेज। 5 seconds. Start. Meetco was further restrained from making an agreement in relation to the amount with SOC without leave of the court. Stop. In the order, it is also noted that UIL had tried to intervene but had not been allowed to intervene. Stop. Though Meetco initially contested the said suit and issues were framed, but subsequently was proceeded against ex parte. Stop. I may also mention that UIL, upon Meetco being proceeded ex parte on 11th February 1987, gave up the claim against SOC, earlier impleaded as defendant, and order was discharged as the defendant in the suit. Stop. The said suit was decreed void judgment for the sum of rupees 29 lakhs with costs and future interest at the rate of 19.5% per annum. Stop. In the said judgment, it was also held that the amount of rupees 14 lakhs lying in the account aforesaid of Meetco with the bank was the trust property for the benefit of UIL. Stop. On or about 28th May 1985, Motor Industries Company Limited instituted suit inter alia against Meetco for recovery of rupees 3 lakhs. Meetco failed to enter appearance in the said suit. Stop. MICO applied for execution of decree in its favor. Stop. The said execution was registered. Stop. On 11th August 1987, warrants of attachment in the sum of rupees 3 lakhs out of amount lying to the credit of the Meetco in its account with the bank were issued by this court. Stop. It is noted in the order in the said execution that the warrants of attachment had been received back duly executed, and the bank was directed to remit the amount of rupees 3 lakhs to this court. Stop. In the order, it is recorded that a letter had been received from the bank that an amount of rupees 26 lakhs lying in the said bank account had been remitted to the Parliament Street branch of the bank for deposit
in the court stop. In the order, it is recorded that the manager of the Parliament Street branch had informed that the check for rupees 26 lakhs in favor of UIL had been handed over to their advocates. Stop. A show cause notice was issued to the bank as to why the amount of rupees 3 lakhs be not recovered from the bank for its failure to remit pursuant to the attachment order of the court. Stop. हम एक्सरसाइज 40 जो है लीगल की उसके आउटलाइंस देखते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं डाली जाए आउटलाइन तो हर आउटलाइन मुश्किल कर देती है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मीटको। मीटको एक कंपनी का नाम है, तो MTK आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसको नीचे आप डबल टिक ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर नाम है किसी कंपनी का। तो लगा देंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट या स्पेशल वर्ड है। अगर नहीं लगाएंगे तो आप इसको इंग्लिश का वर्ड समझ के अपनी सेंस लगाते रहेंगे और अपने आप को और टाइम भी उसमें अपना लग जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है रिस्ट्रेंड, ये है पास्ट में रिस्ट्रेंड। तो जब रिस्ट्रेंड पास्ट में है तो हमें TRN जो है उसको हाफ करना पड़ेगा। अगर हम हाफ नहीं दिखाएंगे और पूरा कर देंगे तो रिस्ट्रेन कर देंगे। और अगर आपको इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो मैंने रिस्ट्रेन को लिख के उसको कट कर दिया ताकि आप इसको पास्ट में जान सकें, ये पास्ट का है। उसके बाद है इन रिलेशन टू दी, ऐसे आप ज्वाइन करके लिख सकते हैं। इन रिलेशन, जब टू हो तो आपको रुक जाना है, लेकिन टू द हो तो आपको नीचे उसका टिक लगाना है द का। तो इन रिलेशन टू दी। उसके बाद है इंटरवीन। उसके बाद है हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन अगर आप अबव द लाइन प्रॉपरली लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो अलग अलग लिख दीजिए, बट गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कंटेस्टेड। अब कंटेस्टेड जब आएगा तो आपको टेस्टेड, जैसे टेस्टेड है उसके ऊपर कौन लगाना है, और टेस्ट होता है ऊपर कौन लगाए तो कॉन्टेस्ट बन जाएगा। तो कॉन्टेस्ट और कंटेस्टेड का मैंने डिफरेंस आपको दिखाया है। नेक्स्ट वर्ड है इशू और इशूज। जब इशू होगा तो S लगा के उसके साथ U लगा दीजिए, इशू हो जाएगा। और जब और प्लूरल में होगा तो आपको S उसके अंदर दिखाना पड़ेगा, U के अंदर, इशूज। नेक्स्ट आउटलाइन है फ्रेम्ड। अब फ्रेम्ड भी अगर आप ढंग से नहीं लिखेंगे तो M को छोटा लिखना पड़ेगा और फ्रे का A दिखा दो तो और अच्छी बात है। M हाफ लिखो, या फिर फ्रेम्ड जब अगर आप नहीं प्रॉपर वो कर सकते तो M को काट दो ताकि आपको ये पता लगे ये M कटा हुआ है, इट मीन्स पास्ट का है ये। फिर उसके बाद प्रोसीडेड है। प्रोसीडेड में प्रो S और डिड, प्रोसीडेड, डिड में D हाफ आना चाहिए, प्रोसीड में पूरा आता है। उसका अल्टरनेटिव है कि आप प्रोसीड लिख के उसको काट दीजिए। उसके बाद हम आते हैं वर्ड एक्स पार्टे। एक्स पार्टे एक लैटिन फ्रेज है। जब किसी केस को एक पार्टी को सुन के डिसाइड करते हैं तो एक्स पार्टे केस हो जाता है कि आपने एक पार्टी को सुना, एक पार्टी नहीं आई। एक्स पार्टे के नीचे अगर आप डबल टिक लगा देंगे तो ये आपको पता लग जाएगा ये लैटिन फ्रेज है, ये कोई स्पेशल वर्ड है। ऐसा ना हो आप इसको इंग्लिश का कोई और वर्ड एक्सपोर्टेड या कुछ और करके लिखते रहे। तो ये चीज़ें होती है, एक एक चीज़ को समझना, पहले तो समझना चाहिए, जब हम समझेंगे तो तभी उसको ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आई मे ऑल्सो मैंशन। अब आई मे ऑल्सो मैंशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, MN को मैंशन या मैंशन से काटते हैं, तो मे में आपको A लगाना जरूरी होगा, आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं गिव और गेव के। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता हो तो G को V की हुक दे के गिव, और गेव होगा तो आप A का डॉट लगाइए। दोनों को ऑन द लाइन लिखिए और डॉट में डिफरेंशिएट करिए। नेक्स्ट है इम्प्लीडेड। इम्प्लीडेड में D हाफ आना चाहिए और इम्प्लीड में D पूरा आएगा। और लास्ट में जो मैंने ऑल्टरनेटिव दिया है, इम्प्लीडेड को आप
काट सकते हैं, ताकि जल्दी में अगर आप छोटा बड़ा नहीं बना सकते तो एटलीस्ट उसको कट कर दीजिए, ताकि आपको पता लगे ये इम्प्लीटेड है। नहीं तो अपनी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो भी उसका मीनिंग ले सकते हैं। इसमें पहली आउटलाइन है डिफेंडेंट की, डी, हाफ डी और वी की हुक, डिफेंडेंट। नेक्स्ट है डिस्चार्ज्ड। अब डिस्चार्ज को या तो आप काटिए CH को, च को काटिए या उसको आधा लिखिए, चॉइस आपके पास है। नेक्स्ट इसमें आया एट द रेट ऑफ। अब एट द रेट ऑफ या तो आप अबव द लाइन ऐसे लिख सकते हैं या एट द रेट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हमने आउटलाइन लिखनी है, एट द रेट ऑफ हमें टाइप करना है एट द रेट ऑफ, और ये भी नहीं है कि एट द रेट ऑफ वैसे करना है, आप ये साइन दे के भी कर सकते हैं। पर एनम आया है, पर एनम को PR को NM से काट दीजिए। पर एनम को पूरा भी लिख सकते हैं, PA करके भी, P फुल स्टॉप A फुल स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। पढ़ने में वो चीज़ सेम होनी चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है। अफोरसेड है, अफोरसेड में मैंने A डॉट लगा दिया है सेड में, अगर आप लगाना चाहें ठीक है, नहीं तो उसके बिना भी पढ़ लेंगे। इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूटेड, देखिए इंस्टीट्यूट में T और U आता है और ट्यूटेड में आपको अलग से टिड दिखाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूटेड। वही मैंने कहा, छोटे लगता सिंपल है, लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूटेड में कैसे डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है इंटरेलिया। इंटरेलिया भी एक लैटिन फ्रेज है, इसीलिए मैंने उसके नीचे डबल टिक लगा दिया। आप ध्यान करिएगा ये इस चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही स्कोर करने में, यही मिस्टेक कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी देखिए, रिकवरी ऊपर जाएगा R, और मैंने रिकवर की भी आउटलाइन आपको दे दी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके। उसके बाद वर्ड है अपीयरेंस। अब जब अपीयर करते हैं हम तो R डाउनवर्ड होता है, लेकिन जब अपीयरेंस करेंगे तो RNS ऐसे बनेगा। ये लगने को, दिखने को वर्ड छोटा सिंपल लगता है, सब कुछ है, लेकिन आउटलाइन अगर पता ना हो तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद मैंने एग्जीक्यूशन दिया आपको। एग्जीक्यूशन में शन नीचे जाएगा और एग्जीक्यूटिव में शन ऊपर जाएगा। केयरफुली लिखा करिए, और जितना आप ध्यान करेंगे लिखते वक्त उतना आपकी ट्रांसक्रिप्शन अच्छी होगी। फिर वर्ड है वारंट्स, NTS, वो मैंने आपको अबव द लाइन बता दिया, वारंट्स लिखा हुआ। और उसके बाद है अटैचमेंट, सिंपल वर्ड है, फिर भी मैंने दे दिया है। उसके बाद है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में T नीचे आएगा हाफ, और एग्जीक्यूट में K हाफ होके U लिखेगा। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा। उसके बाद है रेमिट। रेमिट में M हाफ आएगा और E दिखा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो जब अब पार्लियामेंट स्ट्रीट आएगा तो देखिए पार्लियामेंट आपने दिखा दिया, स्ट्रीट के नीचे भी आप डबल टिक दीजिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी प्लेस का नाम है। ऐसे लिखेंगे तो आपको पार्लियामेंट अगर आपने पढ़ लिया तो स्ट्रीट उसके साथ लिखा हुआ तो आप इमीडिएटली अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इसके नीचे डबल टिक है तो कोई प्रॉपर नाम है। नेक्स्ट है हैंडेड ओवर। हैंडेड ओवर मैंने हैंडेड में D आएगा हाफ, उसके बाद ओवर। एडवोकेट्स अबव द लाइन क्लियरली। उसके बाद शो कॉज नोटिस को आप इकट्ठा लिख सकते हैं और अलग लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैंने बता दिया आउटलाइन, शो कॉज नोटिस। उसके बाद नेक्स्ट है S to Y। S to Y ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैंने बताया है रिकवर्ड, जब पास्ट में आ रहा है तो वही छोटे की बात हो जाएगी। अगर आप इसको स्मॉल नहीं बना सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फाइंड दिस सॉल्यूशन टू कट इट। तो रिकवर्ड ये आप आराम से पढ़ लेंगे, और नहीं कटा हुआ तो रिकवर होगा। उसके बाद है फेलियर। फेलियर सिंपल है, FALR, फिर भी मैंने लिख दिया है। और लास्ट में वर्ड है परसुएंट, PURSUANT, परसुएंट।